material for the income generation. So these are the now the renowned of the polyhouse technology. Polyhouse they classify in the three group, two group and two group classify in the three groups. Semi-control polyhouse divide into semi-control and naturally ventilated polyhouse, and semi-control divide into two group, fine bed polyhouse and forced ventilated polyhouse. And naturally ventilated is being kind other name is electric zero electric device based polyhouse. Yeah, zero device based polyhouse we can known as naturally ventilated polyhouse. These are the more important nowadays in the Indian constitution and Indian farmer. So these are the naturally ventilated polyhouse is a more effective for the lightless area, remote area. Those are the weaker section have not purchased to the light, so they can use for the naturally ventilated. So these are the benefit of the nursery, no need of the discuss. You can see here, these are the soilless nursery, 3:1:1, and sterilized media, and they grow in the at my center, IRI. This is the indigenous media we have used in the Lohaghat KBK. So we can difference in the Israel technology and Indian technology, we can compare almost similar. But these are the having 4,000 to 5,000 rupees of the quintal soilless media, but our media, if you calculate the cost of the 1 quintal of the indigenous media only for the 500 rupees per quintal. So these are the compared to 5,000 versus 500. So we can slowly improve the income generation in the weaker section, hill areas, poor farmers, weaker section, women farmer, they can improve to the high tech. So you can see with the Israeli technology, indigenous technology we can. मेरे कहने का मतलब आप कहाँ खड़े हैं वहाँ आपको टेक्नोलॉजी उसी हिसाब से लॉन्च करना चाहिए. अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी आपको नहीं लॉन्च कर पाएंगे. आप इंडिजीनस मीडिया, इंडिजीनस बम्बू में वगैरह पॉली हाउस बना के, लो टनल बना के, हाई टनल बना करके आप धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं. और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बंगलौर में देखा था, कृष्णा नर्सरी समथिंग कुछ अभी वो लॉन्च हो गई है, वो अपने घर पे इसी तरह किए थे. तो दिस इज ए बिग अचीवमेंट फॉर द इंडिजीनस नर्सरी. यू कैन सी हियर द इंटरनेशनल मीडिया, cocopeat, perlite, vermiculite, and we can develop the indigenous media having only for the two part of the compost, yeah, leaf compost, yeah, vermicompost, and including the one part the sand and one part the ice, because of the all material available in the farmer door. So we can mix and filter, and the treated by pesticide and trichoderma and others. And you can also sun bath, and solarization is more important for the indigenous media. Then will be free from the disease and insect. We can use all the most similar. So we can see the high tech nursery, you can see. So all tray will be thermocol based tray will be more important. Loose tray will be, these are very dangerous for the nursery plant. So we can humble request to the those are the round growing round year nursery, वो अपना जो है थर्मोकोल बेस क्रॉप, थर्मोकोल प्रो ट्रे लेना बहुत ज़रूरी है. लूज ट्रे को अगर न यूज करें, एक तो महंगी पड़ती है, साल भर के अंदर टूट जाती है, और थर्मोकोल बेस लॉन्ग लाइफ चलती है. तो यहाँ आपको पैसे बचाने की ज़रूरत है. तो आप देख सकते हैं ऑफ सीजन कुकुरबिड्स रेजिंग एट IRI. सो दीज आर द सेलिंग पर्पज़. इनकम कैसे जनरेट हो, तो हमारे IRI में पर डे मार्केट लगती है, जैसे INA में मार्केट लगती है, तो हमारे IRI में पूसा सेल काउंटर है. तो वहाँ हम लोग जब मेला आता है या वैसे भी इस तरह से नर्सरी को ले जाके ट्रैक्टर पे खड़ा कर देते हैं और बिकती रहती है. तो दिस इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब गांव में आप देखें वहाँ पर डे के हिसाब से मार्केट लगती है, संडे मार्केट, मंडे ऐसे करके मार्केट लगती है. तो आप जो भी नियर मार्केट हो वहाँ जा कर के तो वहाँ जा कर के आप इस तरह सेल कर सकते हैं. ये सीड रिक्वायरमेंट है. जो नर्सरी ग्रोवर है उनको मैं यहाँ बताना चाहता, समय कम दिए, कि कितना अगर जर्मिनेशन परसेंटेज है तो कितना एक्स्ट्रा सीड खरीदना चाहिए. अगर आप स्पेसिंग के अनुसार प्लांट ग्रो कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो कितना सीड एक्स्ट्रा खरीदना चाहिए. इस तरह से हमने, अब तो टाइम नहीं है, नहीं बताता इसको अच्छे तरह से. इस तरह से अगर हमारा प्लांट पॉपुलेशन के अनुसार अगर हमें
25,000 प्लांट लेना है तो 46,000 सीड यानी 23 पैकेट सीड टमाटर या शिमला मिर्च का हमें खरीदना पड़ता है। मैं एक मोटा मोटा उदाहरण दिया, तो डिपेंड ऑन द स्पेसिंग। तो ये कई चीज़ें ये साइंटिफिक हैं जो पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा रिकमेंड की गई हैं कि लोग क्या करते हैं, 2 पैकेट खरीद के ले आते हैं और उनका सर्टिफिकेशन 50 से 60% रहता है। उसके बाद कहते हैं कि साहब वो तो हमारा पौधा नहीं जमा, हमारा ताज़ा पाली हाउस खाली रह गया। क्योंकि वो जब चेतते हैं वो 1 महीने बाद चेतते, 1 महीने सीडलिंग फिर ग्रो करोगे तो 2 महीना लेट हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, सीड जर्मिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए और स्पेसिंग को मद्देनज़र रखते हुए हम सीड को परचेज करें, और 1 ग्राम में करीब 150 से 200 सीड हमारा मिलता है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके कि अगर इतना स्पेसिंग होगी, इतना प्लांट रिक्वायर होगी, जर्मिनेशन परसेंटेज इतना है, तो हमें इतने ग्राम बीज की आवश्यकता है और उस लिए इतने प्लांट हमें मिलेंगे। तो जो प्लांट टारगेट है जो आप अप्लाई किसी का जैसे ठेका लेकर के करते हैं, तो वो यहाँ एक बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी अगर आप देते हैं ठेका तो वहाँ ये नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी सारा कुछ दिखाया जा चुका है। ये हमारे इंडिजिनाइज प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग रूप में हैं, उनको कैसे दिखाया गया। ये हमारे पूसा में पूरा मॉडल है, डेमोन्स्ट्रेशन है, जो लोग चाहें आके देख सकते हैं। ये पूरा सबसे बड़ा मॉडल है, जैसा कि ब्रह्म सिंह सर ने दिखाया। ये फाइन पैड सिस्टम है। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडिजीनस लो टनल टेक्नोलॉजी में प्रोटेस्ट सिस्टम में कैसे करते हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत लोगों का मानना था कि सॉयल लेस के अलावा अगर हम इंडिजीनस में सॉयल बेस मीडिया का यूज करते हैं तो वो जो है मदर न्यूट्रिएंट पिंडी नहीं बनती है। लेकिन मैंने जब उसका यूज किया 2:1:1 रेशियो का, सॉयल मतलब 1 पार्ट या सैंड 1 पार्ट और 2 पार्ट जो है कंपोस्ट, तो ये देखिए फर्स्ट क्लास उसमें न्यूट्रिशन क्यूब निकल के आई, कोई दिक्कत नहीं थी। ये इंडिजीनस मीडिया का ये काम हिल का है। हिल पे लो टनल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे करके हम राउंड ईयर नर्सरी करके किसी एक पुअर फार्मर को 10 से 15,000 20,000 रुपये की इनकम करा सकते हैं। तो ये लो टनल फॉर हिल फार्मर्स वी हैव मॉडिफाइड टू द टनल टेक्नोलॉजी इन द कवरिंग मटेरियल। तो इस तरह से एक यूनिट वहाँ डेवलप हुई थी कि जैसे जैसे हमारा महीना चेंज होता है कवरिंग मटेरियल हम चेंज करके लो टनल में ही सिंपल वे में भी नर्सरी को हम उगा सकते हैं, सॉइल बेस उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता। ये देखिए रूफ टॉप, जैसे कहा कि रूफ टॉप नर्सरी टेक्नोलॉजी, जो फिक्स टनल टेक्नोलॉजी को हम रूफ पर रख देते हैं और वहाँ सॉयल बेस या सॉयल लेस बेस को कर देते हैं। ये पहाड़ में बहुत ही उपयुक्त है और हमने अर्बन एरिया में जो अब बात हो रही है इस तरह से नर्सरी उगाई जा सकती है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे गरीब किसानों के लिए जो है ये खासकर लो टनल टेक्नोलॉजी महिलाओं के लिए, जो महिला किसान हैं जिनको 10-20 रुपये कमाने की आवश्यकता है बहुत से ज़्यादा जो है, वहाँ हम चूँकि पंतनगर में वो हिल पे थे तो वहाँ महिलाओं का ही ज़्यादा एग्रीकल्चर में रोल था। तो उनके लाइवलीहुड सिक्योरिटी को इनकम जनरेशन के लिए क्या किया जाए, तो वहाँ ये चीज़ों मैंने करके उनको प्रशिक्षण दिया। और आज करीब 1,000 महिलाएं मुझे, तो मैं चला आया तो 10 साल हो गया आए, लेकिन पता लगता रहता है कि 1,1200 महिलाएं कम से कम इस रोज़गार में जुड़ी हैं और साल भर में 15 से 20,000 रुपया आराम से कमा लेती हैं, जहाँ की बेचारी वो कुछ भी नहीं करती थी। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी वहाँ बढ़ावा मिला है। ये लो टनल टेक्नोलॉजी वहाँ ऐसे करते थे, उसको मैंने रिप्लेस करने की कोशिश किया। तो रिप्लेसमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी टू द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। ये देखिए अडाप्टेशन टू फार्मर, ये किसान वहाँ अब अपनाने लगे, करने लगे। ये सब किसानों का है, गरीब किसान वहाँ हाई टनल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, लो टनल टेक्नोलॉजी का ये कर सकते हैं। इस तरह से भी शेड नेट है, बम्बू में एक शेड नेट का है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ब्रह्मसिंह सर ने को दिखाई दिया है सब चीज़ें। तो अब मैं ये सारी नर्सरी के बारे में बताया कि जो है पॉली हाउस और लो टनल इज मोर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द राउंड ईयर वेजिटेबल नर्सरी या एनी हार्टिकल्चर क्रॉप नर्सरी। लेकिन मैंने बताया कि रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब ऐसी जगहों पे जहाँ पानी नहीं है वहाँ रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। देन फिल्टर टू यूज फॉर द नर्सरी इरिगेशन। ये देख लीजिए आप, वहाँ पानी नहीं था जहाँ मैं नौकरी करता था, वहाँ ये सब लॉन्च किया गया और बहुत अच्छा वहाँ एक मॉडल है। किसी को हिल एरिया में मॉडल देखना है तो पंतनगर का केवी के लोहाघाट में जा सकता है। कैसे बनता है, क्या बनता है। अब
नर्सरी प्लांट अगर अच्छा है वेजिटेबल का सॉइललेस से, तो उसका आउटकम क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, वो आप देख सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल नर्सरी से इस तरह का इम्पैक्ट और आउटकम अच्छा नहीं आता है। तो मैं एक डेमो के रूप में यहाँ दिखाने की कोशिश किया। एक किसान के खेत में टमाटर है, जो आपका नर्सरी, जो हमारी हाईटेक नर्सरी से प्लांट जो बना, उससे बनाया गया है। यू कैन सी एंड एंजॉय हियर। दिस इज ए चेरी टोमेटो, दिस इज कलर्ड कैप्सिकम, आल्सो ब्रह्म सिंह सर हियर। और हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको और अच्छा करना है। तो दीज आर द इंटरनेशनल क्वालिटी वी हैव डेवलप, तो बिकॉज ऑफ द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल से ही आप कुछ अच्छा कर सकती हैं। दिस इज ए हिल एरिया। कैप्सिकम सबसे बढ़िया वहाँ होती थी, देख लीजिए यहाँ। मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ओनली फॉर रोल ऑफ द नर्सरी प्लांट, you can see here, enjoy here. So cucumber cultivation, every, so we can grow for quality planting material. We also visit and appreciation by the officer and mantri. You can see conclusion, visit of that officers. Those are this is a visit at Loaghat. This is vertical farming also developed by IRI, the first time is developed, space cultivation and vertical farming. You can see here, sir, these are a lot of officers can see and visit and suggest me. You can see here, sir. So thank you very much, thank you very much attention. Any question we can answer. थैंक यू वेरी मच सर। आई एम श्योर जितनी भी प्रेजेंटेशन में स्पीच सर ने दी है, सभी चीज़ों से सभी को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। इट विल हेल्प अलॉट टू ऑल द नर्सरी मैन एंड लैंडस्केप पीपल ओवर हेयर। सो अगले जो हमारे स्पीकर हैं, दिस विल ऑल्सो बी अ वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड स्पेशल presentation speech by none other than our next speaker. So I would like to welcome none other than Mr. Vimal Kaul on stage. He is the Chief Technical Officer, VK Hydroponic Advisory, Delhi. 40 years of experience he has in commercial agriculture. Out of this, 25-year experience in greenhouse cultivation and 15 years in hydroponics. He has conducted more than 50 training programs on greenhouse operations across the country, even outside the country, in 5 years. With a huge round of applause, let's welcome Mr. Kaul on stage. दोस्तों जोरदार तालियों के साथ हमारे अगले स्पीकर का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए. And I hope we all get to know even more about the industry itself. Over to you, sir. ये प्रेस करना है. Namaskar. A very warm welcome to all of you, and in particular to our guest from Germany. I have a very humble request. Before I start my presentation, I have a very humble request. I would like everyone to be a bit attentive. If we are spending a day over here, it's very important for us that at the end of the day, we take away something from this place. And trust me, if you pay your attention, if you stay alert, if you start interacting with each other and with the speakers, I'm very sure end of the day, you will be in a position to take away certain tips from this place which will affect and which will benefit you very, very immediately once you go back to your businesses. So as I told you, these people told you that I am Vimal Kaul. The first thing about me is that I have not read any agriculture. The second thing about me is that I have not done any research. So I have absolutely nothing very, very special to say. And then why I am here? That is the question. I am here because of my experience. My association with INA is just 1 year old. I am not a member of INA.
During COVID, when they started this webinar series, Mr. Sachin called me and said, can you do a webinar for us? I said, fine, I don't mind. Then I did two, and both of them were very well appreciated by the masses. So what actually has happened in this 1 year is possibly I have not contributed anything very special to INA, but they have. And how they have contributed to me is that now I have started, for the last 1 year, I have started a commercial nursery in NCR in Noida. I am into commercial agriculture for the last 40 years, since 1979. I have been growing medicinal plants, aromatic plants.